Today we are going to discuss topic Reflex Action from chapter Control and Coordination, class 10 Science. मेरे parts of nervous system के बारे में हमने previously discuss किया था that the nervous system it has been divided into two main parts, CNS and PNS. CNS, central nervous system, consisting of brain and spinal cord, and the other is peripheral nervous system consisting of nerves arising from brain and spinal cord. Nervous system के बेटा दो main parts हैं, central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system is further divided into two parts, voluntary nervous system and involuntary nervous system. बेटा इसको और अच्छे से समझने के लिए you can see this flow chart here. The nervous system, two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into three parts, the spinal cord, brainstem and brain. Brainstem and brain together constitute the part of the brain. Peripheral nervous system divided into two parts, the autonomic nervous system and the somatic nervous system. The autonomic nervous system has again two parts, the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So these are the parts of the nervous system. Now, reflex action. What is the meaning of the word reflex? Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden actions in response to something in the environment. बेटा आपने भी प्रीवियसली पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट एंड दिस इज़ कॉल्ड द स्टिमुलस. सो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आवर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग बाय सर्टेन एक्शंस. These are called the reflex action. So a reflex action is the simplest form of response in the nervous system. ये reflex action बेटा rapid होता है, autonomic होता है, which is not under the voluntary control. It means a reflex action is an involuntary action. Reflex action को बेटा और अच्छे से समझने के लिए we can see this example that moving our hand away on touching a hot plate. जैसे ही आप किसी गर्म प्लेट या ग्लास या कप को टच करते हैं आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है. This is an example of a reflex action. Some other examples are watering of mouth at the sight of delicious food. जैसे ही कोई खाना जो आपको बहुत ही पसंद है, खुशबू आ रही है, आपके माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है. Blinking of eyes due to sudden appearance of some object in front of eye. आई का ब्लिंक होना. ये जो एग्जाम्पल्स हैं, these are the examples of reflex action. Now the reflex actions are fast and automatic response to the stimulus and is controlled by spinal cord. बेटा ये जो reflex action होते हैं बहुत ही fast होते हैं, automatic होते हैं. They are not controlled by our will. They are involuntary actions and these actions are controlled by the spinal cord. बेटा reflex actions जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. The actions which are controlled by spinal cord, they are called spinal reflexes. And there are certain reflex actions which are controlled by the brain. These are called cerebral reflexes. अगर हम spinal cord के reflex action की बात करें, how this action is performed. On receiving the stimulus, सबसे पहले जैसे ही stimulus receive करता है receptor, the dendrites of the sensory neuron they pass this message to the spinal cord. Spinal cord में जब मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा लेके आते हैं तो रिले न्यूरॉन्स जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन में पास करते हैं. मोटर न्यूरॉन सेंड दीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द इफेक्टर्स. ये जो इफेक्टर होते हैं ये हमारे मसल्स में होते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं एंड दे परफॉर्म द एक्शन. For quick response, reflex action involves spinal cord. Reflex action क्योंकि बहुत ही fast होते हैं, ये spinal cord से हो रहे हैं. But what is the role of brain here? The information goes to the brain
where the thinking process takes place. जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है जहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस होता है. तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहे हैं, ब्रेन का बेटा वहाँ पर क्या रोल है? द इंफॉर्मेशन गोज ऑन टू रीच द ब्रेन and where the thinking process takes place. Now you can see the figure here. बेटा यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया है when we touch a hot object. सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट गर्म है, हमारे जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, दे रिसीव दिस मैसेज. सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं मोटर न्यूरॉन में. मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को वापस लेके आता है टू द इफेक्टर्स एंड दीज इफेक्टर्स आर इन द मसल्स ऑफ आवर आर्म, जिसकी वजह से हमारे हाथ की मसल्स जो हैं वो एक्शन परफॉर्म करती हैं एंड आवर हैंड इज़ मूव्ड बैक. सो दिस इज़ द डायग्राम showing the reflex action. Now what is reflex arc? The path taken by nerve impulse in a reflex action is called the reflex arc. जो पाथ जिस पाथ से रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल कर रहा है टू परफॉर्म द एक्शन, दैट पाथ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. बेटा ये रिफ्लेक्स आर्क का अगर हम इसमें देखें तो रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथ है, सबसे पहले स्टिमुलस इज़ रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर. अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट के केस की बात करें तो रिसेप्टर्स हमारे स्किन में हैं. रिसेप्टर्स में जो मैसेज रिसीव होता है दैट इज़ कैरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में जब मैसेज आता है तो रिले न्यूरॉन इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मोटर न्यूरॉन पे. मोटर न्यूरॉन इन मैसेजेस को वापस लाता है इफेक्टर्स पे. ये इफेक्टर्स हमारे हाथ की मसल्स में होते हैं एंड द एक्शन इज़ परफॉर्म. सो दिस इज़ अ पाथ थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ परफॉर्म्ड एंड दिस पाथ इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. यहाँ पर बेटा इस फिगर में आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया है. दिस फ्लो चार्ट शोज़ द रिफ्लेक्स आर्क व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, इमीडिएटली आवर हैंड मूव्स बैक. तो ये हमारा जो हाथ पीछे आता है वो किस पाथ पे ट्रेवल करता है, दिस इज़ शोन इन द फिगर एंड दिस पाथ इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. सबसे पहले बेटा देखिए, स्टिमुलस इज़ द हीट. ऑब्जेक्ट गर्म है, ये स्टिमुलस है. रिसेप्टर जो हमारे हाथ की स्किन पे हैं इसको रिसीव कर रहे हैं. Then this is carried to the spinal cord by the sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिटर्न बैक होता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स इन मैसेजेस को इफेक्टर्स तक लाते हैं. दीज इफेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स. और जब ये हमारे हाथ की मसल में इंफॉर्मेशन आती है दैट द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, देन आवर हैंड मूव्स बैक. So the reflex actions are the action perform. जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो फास्ट है, ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंट्री है, दैट एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन. और जिस पाथ से रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल कर रहा है दैट पाथ